जयनशीन पर तशरीफ फरमा, डायरेक्टर साहिबान और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए उलमा और तालिबात, मैं नहीं समझता कि अब मेरे पास कुछ है कहने के लिए। और जिस तरीके से मैंने आज आपके असातिज़ा, आपके टीचर्स की बातों को, जुमलों को, अशार को और अहादीस को सुना है, तो मुझे भी बड़ी ही न सिर्फ खुशी महसूस हुई, बल्कि इन लोगों को सुनकर, इन असातिज़ा को सुनकर खुद को भी मैंने एक तालिबे इल्म जैसा महसूस किया। और ये बात जरूर कहना चाहूंगा, समझने सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। तो आज इन असातिज़ा ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हर वक्त हम सिर्फ सुनाते रहे, बहुत दिन बाद कुछ सुनने का भी मौका मिला। न सिर्फ सुनने का मौका मिला, बल्कि कुछ अच्छा सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, कुछ समझने का मौका मिला। तो इतना सब सुनने के बाद भी क्या आप मुझे सुनने तैयार हैं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल, आज की ये तकरीब एक अलग ही नौइयत की है। वो इसलिए है कि मैं बार बार एक बात कहता था और अल्लाह ने उस बात को आज न सिर्फ आपके सामने बल्कि दुनिया के सामने भी जाहिर कर दिया कि बहुत सा इल्म ऐसा है जो बड़े बड़े आलिमों ने किताबों में कैद करने से महरूम रह गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगा कि आज इन मुदर्रिसों ने अपने खुतबात के जरिए जो खिताब किया है और आपको जिस अंदाज में समझाया है, मैं नहीं समझता कि ये इल्म किताबों में कैद है। तो इसलिए आज की ये तकरीब का इनेकाद हमने इसलिए किया कि हम उस इल्म को आप तक पहुंचाना चाहते थे जो इल्म किताबों में कैद होने से महरूम रह चुका। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बातें आपके सामने रखी गई हैं वो ऐसी बातें हैं जो किताबों में नहीं दिखाई देती, किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती। और वही इल्म, वही तजुर्बा इन असातिज़ा ने आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश की। और ये भी बात कहूंगा कि सालार मिल्लत अलैहि रहमा मेरे वालिद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मरहूम सदर बार बार मुझे कहते थे कि कामयाब मुखर्रिर वो होता है जो कम वक्त में मुकम्मिल पैगाम दे दे।
ان اساتذہ نے چاہے وہ عظیم صاحب ہو، چاہے وہ عمر الحق صاحب ہو، چاہے وہ معین صاحب ہو، چاہے وہ محترمہ عافیہ صاحبہ ہو، یا محترم احتشام صاحب ہو، سہیل صاحب ہو، یا واجد صاحب ہو، یا رخسار تبسم صاحبہ ہو، یا توقیر بانو صاحبہ ہو، یا سہیل صاحب ہو، یا پھر ہمارے باٹنی کے اسما بیگم صاحبہ ہو، انہوں نے کم وقت میں مکمل پیغام دیا، ایک کامیاب پیغام دیا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آج جو آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم وہ سمجھائیں، وہ سکھائیں جو کتاب میں نہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو آج ایک دن کے لیے کتاب سے، قلم سے، بلیک بورڈ سے اور اپنے کلاس روم سے رخصت دی، تعطیل دی کہ آپ وہ سیکھیں جو کتابوں میں نہیں ہے، اور ہم آپ کو وہ حوصلہ دیں، وہ امید دیں کہ آپ اپنے آنے والی زندگی میں ایک نئے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ایک جنون کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے منزل مقصود کو حاصل کریں۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو اپنے کامیابی پہ رش کرے یا اپنے کامیابی کے نشے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ وہ دوسرے کو کم کر سکے۔ کامیاب اگر زندگی میں ہونا ہے تو سارے لوگوں نے کئی باتیں کہی، اور پھر میں نے سنا ہے کام کامیابی کی نشانی ہے۔ بے شک کام کامیابی کی نشانی ہے، لیکن محنت بھی کامیابی کی نشانی ہے۔ آپ اگر محنت کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے اور اپنے مقصد کے لیے ایک جنونی کی شکل اختیار کریں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن اس چیز کو یاد رکھیے، اگر عزم نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، جنون نہیں، تو پھر ہم اپنے منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکتے۔ عزم پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، جنون پیدا کرو کہ ہم کو یہ حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کے منزل کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ آج ہم یہاں پہ جو آپ کو موقع دے رہے ہیں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 10th کی فری ٹیوشن کا اہتمام ہے، انٹرمیڈیٹ کی فری ٹیوشن کا انتظام ہے، نیٹ کے فری کوچنگ کا انتظام ہے، ایپسیٹ کی فری کوچنگ ہے، آئی سیٹ کی فری کوچنگ ہے، پھر اس کے بعد میں انجینئرنگ کی فری کوچنگ ہے۔ تو یہ سارے فری کوچنگ، یہ سب کچھ کیوں ہے کہ ہم یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ قابلیت کا مرکز ہے، یہ صلاحیت کا مرکز ہے، یہ جہالت کا مرکز نہیں ہے، یہ کامیابیوں کا مرکز ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم ان ذہین ذہنوں کو، ان قابل طلباء و طالبات کو، وہ جنون رکھنے والے طلباء و طالبات کو جو موقعوں سے محروم ہے، وہ موقع ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہوں گا، اگر ہزاروں روپیے، لاکھوں روپیے دے کر اگر کوئی کوچنگ حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ کوچنگ اچھی ہے، اور کوئی
हजारों लाखों रुपये खर्च कर ब्रांड के कपड़े पहनता है तो समझता है कि ये कपड़े अच्छे हैं। नहीं, फ्री कोचिंग में भी ऐसे ब्रांड वाले टीचर हमारे पास मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता कि लोग ये ना समझें कि ये फ्री का है तो यहां पे ऐसे वैसे पढ़ाने वाले हैं, ऐसे वैसे पढ़ाने वाले नहीं हैं। अरे प्रीलिम्स को क्लियर करना, प्रीलिम्स को क्लियर करना बहुत 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 बड़ी बात है। नीट को क्रैक करना आसान है, एमसेट को क्रैक करना आसान है, लेकिन प्रीलिम्स को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा बहुत मुश्किल है। कहीं पर प्रीलिम्स क्रैक करने वाले टीचर्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे लोग हमारे पास हैं, ऐसे काबिल लोग हमारे पास हैं। मुझे फख्र होता है इस बात को कहते हुए कि ऐसे लोग हमारे पास हैं, पढ़ाने वाले हैं। मोहतरमा आफिया साहिबा की क्या काबिलियत है, कितनी काबिलियत है बताओ आप। कैसे कैसी उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई। अरे आज मैं समझूंगा कि ये उन्होंने खड़े रहकर कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनको मौका दिया। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी कहता हूं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि आप मेरे साथ हैं। आप जैसी काबिल, आप जैसी टीचर हमारे लिए एजाज, हम सबके लिए एजाज है। हम आपके ममनून और मशकूर हैं कि आपको कहीं पर भी रोटी मिलती थी, आपने हमको मंतखब किया, अल्लाह आपको मंतखब किया। इन मासूमों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। खुदारा सब्र करो इन लोगों को। ये अजीम साहब किस तरीके से मुखातिब थे। अरे किस के बारे में कहूं। उमर उल हक साहब ने, एहतेशाम साहब पीएचडी में क्या रैंक है आपने बताया, आपको क्या रैंक आया था आफिया साहिबा ने बताया। और फिर मोइन साहब ने किस तरीके से अरबी में आपको मुखातिब किया। अरे आप बताओ कि कैसे काबिल हैं, कैसी काबिल, कितने लर्नड टीचर्स हमारे पास हैं। तो अगर फ्री में हम कोचिंग दे रहे हैं तो कोई ये ना समझे कि ऐसे ही दे रहे हैं। अरे हजारों रुपये लेने वालों के पास ऐसे काबिल टीचर्स नहीं जो फ्री के इस इदारे में है। अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं ये बात कहूंगा इसलिए कि नीयतें अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी है, दिल में सच्चाई है, तो अल्लाह जरूर कामयाबी और कामरानी से नवाजता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। क्या है ईमान? ईमान का मतलब क्या है? अरबी में ज़वाल शिकस्त को ईमान कहते हैं। ईमान किसको कहते हैं? ज़वाल शिकस्त को ईमान कहते हैं। तो हमको शिकस्त को ज़वाल देना है। और फिर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मतलब यह है कि तुम ये देखो कि तुम्हारे दामन में, तुम्हारे हाथ में जो बीज है, क्या वो बीज सच्चा है? तुम ये देखो कि जिस सच्चे बीज को तुम जिस जमीन में बोने जा रहे हो, क्या वो जमीन साले है? अगर बीज सच्ची है, जमीन साले है, तो अल्लाह खुद अपने रहमत के बादलों को बरसाएगा और सच्ची बीज और साले जमीन के सीने को चाक करती हुई अपने कामयाबी के झंडों को गाड़ देगी। यही है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात।
یہ اساتذہ سچے ہیں، اب تم کو صالح بننا ہے۔ یہ اساتذہ سچے ہیں، ان کا علم سچا ہے، ان کے پاس جو علم کی بیج ہے یہ سچی ہے، اور یہ اپنے سچے بیج کو جس سالے زمین میں بونے جا رہے ہیں وہ سالے زمین آپ کا بننا ہے، تو ضرور یہ سالے بیج، یہ سچی بیج سالے زمین کے سینے کو چاک کرے گی، اور اللہ اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا، اور کامیابی اور کامیابی تمہارے قدموں کو چلے گی۔ اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو، اور اس چیز کو یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان حاصل نہیں کر سکتا، ناممکن کچھ نہیں ہے، صرف عزم ہونا ہے، حوصلہ ہونا ہے، ارادہ ہونا ہے، ہمت ہونی ہے، جنون ہونا ہے، تو ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے، بشرط یہ کہ وہ حوصلہ ہو، بشرط یہ کہ وہ عزم ہو، وہ ارادہ ہو۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج یہاں بیٹھی ہیں اتنی ساری پردہ نشین میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ہر کوئی پوچھتے ہیں اکبر صاحب آپ نے اتنی بڑی عمارت بنائی، آپ اس عمارت کو اپنے نام سے رکھنا تھا یا کچھ اور کرنا تھا؟ یہاں دیکھو، بیرسٹر فاطمہ اویسی نام ہے، یہ بیرسٹر فاطمہ اویسی میرے لخت جگر میری بیٹی کا نام ہے، یہ میری بیٹی کا نام ہے، میری ہمت میری بیٹی ہے، میری طاقت میری بیٹی ہے، میرا جنون میری بیٹی ہے، میری کامیابی میری بیٹی ہے، اور میری بیٹی نے میرے سر کو فخر سے بلند کیا کہ وہ آج لندن میں بیرسٹر ہے، اور میری بیٹی 24 سال کی ہے، 24 ایئرز میں بیرسٹر بنی ہے۔ ارے میں نے اس عمارت کا نام فاطمہ اویسی کے لیے اس لیے رکھا کہ میں ہر بچی کو، ہر بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آنے والے کل میں قابل بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آنے والی صدی، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والی صدی میں عورتیں، لڑکیاں سب سے آگے رہیں گی، اور مرد حضرات ان کے پیچھے رہیں گے۔ دیکھ رہا ہوں آج یہ بات غلط نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس ایم بی بی ایس میں بھی جب کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو زیادہ لڑکیاں رہتی ہیں، انجینئرنگ میں بھی لڑکیاں، ہر اس میں زندگی کے، اور آج ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اس میں بھی زیادہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ہر فیلڈ میں۔ نہیں تو پہلے یہ تھا کہ صرف آبسٹرکس اینڈ گائنک میں لیڈی ڈاکٹرز ہوتی تھی، لیکن آج ہر فیلڈ میں لیڈی ڈاکٹرز ہیں، اور آج سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ میں سب سے زیادہ متحرک، محنت، کوشش، دیوانگی کی طرح کام کرنے والی اور میرے مقصد کو آگے بڑھا کر لے جانے والی بھی ایک لڑکی ہے جس کا نام امتل ہے۔ یہ بھی پی ایچ ڈی ہے، بائی دی وے شی از آلسو ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی۔ You know, I know that کہ there are many نیٹ کے اسٹوڈنٹس آج یہاں پر ہیں، لڑکیاں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کریں۔ امتل صاحبہ بھی چاہتی تھی کہ ایم بی بی ایس کریں، بہت کوشش کی، کام کیا، محنت کی،
एंट्रेंस की तैयारी की, नीट को उस वक्त एनसेट था उस वक्त, तो वो भी क्रैक किया, लेकिन किसी वजह से एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिल सका। लेकिन आप देखो, एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिला, तकलीफ तो बेशक हुई होगी, लेकिन अज़म नहीं टूटा, हौसला कमजोर नहीं हुआ, और फिर एक नए इरादे को लेकर आगे बढ़ी। और उसके बाद में एमबीबीएस में नहीं मिला तो आपने फार्मेसी को ज्वाइन किया, फार्मेसी हो गई तो उसके बाद में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ज्वाइन किया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ तो फिर एचआर ह्यूमन रिसोर्स में पीएचडी में ज्वाइन किया, और पीएचडी कंप्लीट कर डॉक्टरेट हुई, और अकबरुद्दीन ओवैसी की हिम्मत बनकर आज इस इल्म के कारवां को आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद और कोशिश में आप देखिए। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि बहुत सारी फील्ड है। हमारे अस्मा बेगम साहिबा ने कहा, अब्दुल मैडम ने सारी चीजें समझाई, बीएससी न्यूट्रिशन, ये वो सारी कोर्सेज के बारे में कहा। दूसरे असातिज़ा ने बताया कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पीएचडी कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि एक चीज मिस हो रही थी, लेकिन अस्मा साहिबा बॉटनी के उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। वेरी फ्यू नो अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च। रिसर्च में जाते हैं। एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही आगे बढ़कर, आज हर कोई कहता है ना कि दवा खा लो, ये बीमारी है, ये खा लो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज कई बीमारियों का इलाज साइंटिस्ट, जो बायोटेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट बनते हैं, ये लोग स्टेम सेल थेरेपी से कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, और फिर कई शोबों में रिसर्च हो रहा है। कैंसर रिसर्च, एक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आप कैंसर में जाते हैं, मलेरिया पे रिसर्च, डायबिटीज पे रिसर्च, जो सही कहा मैडम ने कि इंसुलिन के बारे में। तो ये कई चीजें हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप एमबीबीएस में निशिस्त हासिल नहीं कर सके तो दैट इज नॉट द एंड, इट इज नॉट द एंड, इट इज अ न्यू बिगिनिंग टू अचीव समथिंग एल्स इन लाइफ। बहुत ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे। और लोग समझते कि एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग करे तो ही सब कुछ है। नहीं, एमबीबीएस इंजीनियरिंग में ही नहीं है, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं आप, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी बात कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जिंदगी के ऐसे शोबे हयात हैं जहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर नहीं, आज हमको डॉक्टर के साथ इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के साथ हमको इकोनॉमिस्ट बनना है, इकोनॉमी के साथ हमको हिस्टोरियन बनना है, हिस्टोरियन के साथ हमको साइंटिस्ट भी बनना है, हमको लॉयर भी बनना है। जिंदगी के हर शोबे में जहां पर हम नहीं है, हमको पहुंचना है, जाना है, और न सिर्फ पहुंचना है, जाना है। जिंदगी के हर शोबे में हमको नंबर 1 बनना। हम आगे रहेंगे और दुनिया को हम अपने पीछे लाकर खड़ाएंगे। ये अज़्म लेकर हमको जाना है। आज जो लोग कहते हैं कि पुराना शहर पीछे है, वो दिन दूर नहीं, शायद मैं जिंदा न रहूं, लेकिन दुनिया देखेगी कि पुराना शहर सबसे आगे रहेगा और बाकी शहर पीछे रहेंगे। इल्म के मैदान में, काबिलियत के मैदान में इंशाअल्लाह ये है हमारा अज़्म, ये है हमारा इरादा। खुदारा ये जो मौका है ना आपको, इससे फायदा उठाओ, इससे फायदा उठाओ। मैं एक वाक़या बोल के हुए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग का टाइम 8:30 को खत्म था क्लासेस का, तो जाना है, देर हो जाएगी। तो मैं एक लास्ट 2-3 बातें
कहते हुए खत्म करूंगा। हो सकता है कि उलमा मेरे इस वाक़े से इख्तिलाफ करें, लेकिन एक वाक़या मैंने किताब में पढ़ा, बड़ा अच्छा दिखा था मुझे कि एक मर्तबा जैसे आज बारिश हुई तो मौसम की पेश कयासी करने वाले ने वेदर का फोरकास्ट किया और कहा कि बहुत बारिश होने वाली है, बहुत बारिश होने वाली है, इतनी बारिश होने वाली है कि लबरेज हो जाएंगे, घर डूब जाएंगे, झाड़ उखड़ जाएंगे, तेज हवाएं आएंगी। तो ये सब सुनकर जिसको जो इंतजाम करना था उन्होंने इंतजाम करा लिया। काले बादल छा गए आसमान पर, बादल बरसने लगे, जोरदार बारिश होने लगी। गया, लोग तैरते हुए जा रहे थे, कश्तियों में बैठ के जा रहे थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे। चले गए, कश्तियों में जाते गए, लोग जाते गए। एक आदमी था, जब जबरदस्त काले बादल बोला बचाए और पानी इतना भर गया तो नारियल के झाड़ पर चढ़कर बैठ गया और कश्तियों में लोग जा रहे थे। आखिरी कश्ती जा रही थी, लास्ट। तो आखिरी कश्ती जब जा रही थी तब भी लोगों ने कहा, अरे मियां चल मियां, मर जाएगा, आखिरी कश्ती है। तो फिर कहने लगा कि अल्लाह बचाएगा। नारियल के झाड़ पे था, पानी ऐसे से यहां तक आ गया तो आवाज आई, मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 मौके दिए, उसमें से तूने एक भी मौके से अपने आप को नहीं बचाया, तो अब मैं तुझे कैसे बचाऊं? तो आप समझो मेरी बात, ये मौका है जो आपको अल्लाह दे रहा है। इन काबिल असातिज़ा की निगरानी में अपने मुस्तक़बिल को संवारने का, सजाने का और दुनिया की इमामत को अपने हाथ में लेने का, इस मौके को जाने, इस मौके को जाने और इस मौके का भरपूर फायदा उठाना है। तो यही कहूंगा कि क्या अच्छी बात कही कि सुबह सवेरे उठो, फजर को उठो। हमारे पास का माहौल ऐसा है कि रात में घूमना है, फिरना है और उसके बाद में जोहर की अज़ान से उठना है। नहीं, वो खाम जो सोती है देर तक, वो सोती ही रह जाती है। वो खाम जो सुबह फजर को उठती है, वो खाम दुनिया की इमामत करती है और दुनिया की लीडर बनती है। खुदा सुबह उठना शुरू करो, जल्दी सोना शुरू करो, जल्दी खा लो। अगर मैं गलत हूं तो मुफ्ती साहब, अनवार साहब मुझे टोक सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद घर में चले जाते तो बहुत बहुत अहम अगर कोई वजह होती तभी आते, तभी आते। हमारा माहौल तो ये हो गया कि ईशा छोड़ो, रात के 10 बजे लोग तैयार होके रवाना होते हैं घरों से। रुखे में लिखा रहता है निकाह बादे ईशा। दिन बदल जाता है, 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है और तब ईशा, जब निकाह होता है। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखो 4-6 महीने हैं, 4-6 महीने हैं। ये 4-6 महीने शादियां नहीं, तफरी नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ किताबें हैं, पढ़ना है, अपने मकसद को हासिल करना। ये एक चीज है, ये एक चीज कर लो, ये एक चीज कर लेंगे ना हम, तो हम नाकाम हरगिज़ ख़तई नहीं होते और ना हो सकेंगे। और उसके साथ ही साथ नमाज के पाबंद बनो, नमाज के पाबंद बनो,
फजर की नमाज पढ़ो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो। कितनी देर लगेगी? सुन्नत नहीं भी पढ़े तो पहले शुरू कर दो फरज से। अगर फरज पढ़ेंगे तो सारी नमाजों के लिए 24 घंटे में से सिर्फ 20 या 25 मिनट ही में आपकी नमाज हो जाएगी। पांचों नमाज सिर्फ 20 से 25 मिनट। 2 रकात फजर के फरज पढ़ने के लिए कितना वक्त लगेगा? एक 4 मिनट, 3 मिनट। जोहर के अगर फरज ही पढ़ लें 4 तो उसको भी एक 4 मिनट, असर के भी 4, मगरिब के 3, ईशा के एक 6-7 मिनट। तो अगर आप देख लो, इसको गिन लो, अल्लाह आपको 24 घंटे दे रहा है। सांस लेने के, हयात के 24 घंटे में माँ बाप की दुआओं लेने का मौका दे रहा है। छोटों के सर पर शफकत का हाथ रखने का मौका दे रहा है। 24 घंटे में कई लवाज़िमात को चखने का, खाने का लुत्फ दे रहा है। खैखे मारने का मौका दे रहा है, मजे लेने का मौका दे रहा है, न जाने कितनी खुशियां दे रहा है। अगर मैं कहूं तो इस 24 घंटे की अल्लाह ने जो मुझे हयात दी, उस 24 घंटे में सबसे बड़े खुशी का लम्हा मेरे लिए आपसे मुलाकात का मौका है, आपसे मुखातिब होने का मौका है। जब अल्लाह मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाज रहा है तो क्या मैं पलटकर 20 मिनट अल्लाह को नहीं दे सकता? जो अल्लाह को 20 मिनट नहीं दे सकता, याद रख लो, अल्लाह उनको नींद में भी कामयाब नहीं कर सकता, अल्लाह उनको एब्सेंट में भी कामयाब नहीं करेगा। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी, अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। अल्लाह को राजी करो, माँ बाप को राजी करो, असातिज़ा का एहतराम करो, दुनिया की हर नाकामी कामयाबी में बदल जाएगी। इस बात को समझ लो। यहां पे बैठे हैं सारे, इन सबसे आखिरी बात कहूंगा कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। लोग मुझे समझते हैं कि अकबर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इंटरमीडिएट पास हूं, मैं डिग्री भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इंटरमीडिएट पास हूं, 12th पास। आज 12th पास बड़े बड़े काबिल लोगों को मजबूर कर देता है उसकी बात को सुनने के लिए। इतना कम इल्म है लेकिन इतना नाम है, इतना कम इल्म है लेकिन इतना खिताबत का जादू है, इतना कम इल्म है कि हर मुखालिफ खारिज होता है, इतना कम इल्म है कि वक्त का हर चीफ मिनिस्टर घबराता है, इतना कम इल्म है कि हमारे मुगलों के इसके सामने टिक नहीं सकता। तो मैं कहूंगा कि इल्म कम है लेकिन माँ बाप के दुआओं का समंदर है, असातिज़ा के एहतराम की दौलत है, और आपके दुआओं का खजाना है जो लेकर आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए कामयाब हो। कम इल्म के बावजूद याद रख लो, जिससे अल्लाह राजी, जिससे माँ बाप खुश, असातिज़ा खुश, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। वो तो आगे ही बढ़ता जाए, आगे ही बढ़ता जाए। अरे मेरे जिंदगी में कई मर्तबा मैं कह रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, लेकिन गैब से अल्लाह ख्यालात डाल देता है, हालात बना देता है, और मुश्किल राह में भी अल्लाह कामयाब व कामरानी से नवाज देता है। आज की बात कहूंगा, आफिया साहिबा को, अजीम साहब को देखकर मैंने अपने आप को इतना छोटा महसूस किया, इतना छोटा महसूस किया
کہ تھوڑی دیر سوچتا رہا آنکھ بند کر کے کہ اب میں کیا بولوں ان قابل لوگوں کے بعد اور کیا بول سکتا ہوں ان کے بعد. اللہ نے بلوا دیا. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہترین مقرر ہیں, تقریر کرتے ہیں. واللہ بخدا میں کبھی بھی سوچ کر تقریر نہیں کرتا ہوں, صرف ایک ہی چیز کرتا ہوں. کیا؟ درود پڑھتا ہوں, درود پڑھتا ہوں. اور جس وقت بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے جیسے آج کی, کہ اتنے قابل لوگوں کے بعد میں ایک 12th پاس کو تقریر کرنا تھا تو کثرت سے درود پڑھ رہا تھا, کثرت سے درود پڑھ رہا تھا. اور اللہ نے خود الفاظ دے دیے اور ہم الفاظ کو اللہ کی دین, اللہ کا حکم سمجھ کے آپ کے سامنے رکھنے کی ایک ناکام کوشش کیا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ میرے الفاظ نے آپ کے دلوں کو چھویا ہے اور آپ کے دلوں کو, آپ کے جنون کو, آپ کے ہمت کو ایک نیا عزم دیتا ہے, نئی طاقت دیتا ہے. مجھے امید ہے اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کے محنتوں کو, کوششوں کو, خوابوں کو اللہ پورا کرے. اللہ آپ کو اول درجے میں کامیابی و کامرانی عطا کرے. اللہ آپ جو اس ایک مقصد کو لے کر یہاں پر آئے ہیں, اللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا کرے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی کامیابی میں آپ کے ماں باپ کی محنت کو, جستجو و قربانیوں کو اللہ قبول کرے. اللہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے میں جو کوشش ہمارے اساتذہ کریں گے, اللہ ان کی کوششوں کو آپ کی کامیابی کے ذریعہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اداروں کو روز قیامت تک قائم و دائم رکھے. ہم رہیں یا نہ رہیں, یہ عمارتیں رہیں گی. اے اللہ تو ان اداروں کی حفاظت فرما, اے اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما. جس مقصد کے لیے ہم نے اداروں کا قیام کیا ہے, اللہ اس مقاصد میں تا قیامت تک قائم و دائم رہنے کی ہر ذمہ دار کو اس کی توفیق و ہدایت عطا فرما کہ یہ ادارے کامیابی کے ساتھ چلے, یہ ادارے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے. یہ ادارے ان قابل ذہین طلباء و طالبات جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, بڑے بڑے کوچنگ سینٹر میں نہیں جا سکتے, وہ یہاں آئے تو اے اللہ ان اداروں میں بڑے بڑے کوچنگ سینٹر سے زیادہ ان کو قابل اور کامیابی عطا فرما. ہمارے ان بچوں, اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہماری محنتوں کو, ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. بے شک اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں, بے شک اے اللہ ہم میں بہت ساری غلطیاں ہیں, بے شک اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ کیسا کام کرنا ہے, بے شک اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے پڑھانا چاہیے, کیسے اداروں کو چلانا چاہیے. لیکن اے اللہ ہم صرف تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی امتیوں کی خدمت کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. مولا تو اس کوشش کو کامیابی و کامرانی عطا فرما, کوشش کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. یہ سارے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہیں, اے اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما. یہ جو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں ان اداروں کے لیے, اے اللہ تو ان کے مصیبت کے وقت ان کے پریشانیوں کو دور کر کے ان کو صحت سے رکھ, ان کو لمبی عمر عطا فرما. آدتیہ صاحب ہیں ہمارے ڈائریکٹر, ارشد صاحب ہیں, عزیز صاحب ہیں, ابرار صاحب ہیں, انوار صاحب ہیں, شفیع صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, جنید پاشا صاحب ہیں, سعادت علی اکبر ہیں, ملیہ صاحبہ ہیں, امتل صاحبہ ہیں. اے اللہ یہ کام ان کے بغیر
नामुमकिन है अल्लाह। इनकी हिम्मत, इनकी दुआएं, इनके ताउन की वजह से ये काम आगे बढ़ रहा है। ऐ अल्लाह, इनकी परेशानियों में इनकी गैब से मदद। ऐ अल्लाह, यहाँ पे इतने सारे असातिज़ा हैं मौला, ये सारी खिदमत कर रहे हैं मौला। इन असातिज़ा की खिदमत को, इनकी कोशिश को कबूल फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, गैब से इनको मदद फरमा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे इदारे हैं जहां पर इनको हम जो भी हदिया दे रहे हैं इससे बढ़ के मिल सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे इदारों का इंतखाब किया है। मौला, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, मौला इनकी मुसीबतों को दूर फरमा, इनकी कोशिशों को कामयाबी दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, आज हम इस तकरीब के जरिए हिम्मतों को बढ़ाने की एक कोशिश करे हैं। ऐ अल्लाह, तो हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, आज हम इस तकरीब के जरिए मासूम बच्चों में जो एमपीसी के हैं, हम उनको किताबें दे रहे हैं। ऐ मौला, हमारे इस अमल को तो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम साइंस के बैकग्राउंड के, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी बुक्स दे रहे हैं मौला, तो इस बुक्स के जरिए इनको आला दर्जे में कामयाबी अता फरमा। हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम बेबस हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है मौला। हमारे पास कुछ है तो सिर्फ तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की मोहब्बत है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है। हमारे दुश्मनों से महफूज फरमा, हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मैं हर नमाज में आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा। आपको कोई भी कभी भी कुछ भी जरूरत है, चाहे वो इंटरमीडिएट के ट्यूशंस के स्टूडेंट्स हो या नीट या एब्सेंट के स्टूडेंट्स हो, आपको जरूरत है तो आवाज दो। आपका ये भाई, आपका ये बाप दाखिल अकबरुद्दीन ओवैसी आपके लिए हाजिर है। अपनी जात से जो भी आपकी मदद हो सकती है, ताउन हो सकता है, खिदमत करने के लिए तैयार हो। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा ये बाप तुम्हारी मोहब्बत में लुटने तैयार है, बस तुमको लूटना है। लूटना है तो लूट लो, मुझे लूट लो, मैं लुटने तैयार हूं। अपनी कौम को दुनिया के इमाम बनाने का जुनून है, और वो दिन दूर नहीं कि हम सबसे आगे होंगे और दुनिया हमारे पीछे होगी। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।